Hello students, hope you all are fine. Today I am going to explain you chapter number 3 of SP part 1, that is interdepartmental and employee related correspondence. Now you have studied the meaning of correspondence in the previous year. Correspondence, that is communication. Here in the subject of SP I am going to explain you business communication or business correspondence. Here the heading of the chapter means interdepartmental correspondence, that is communication amongst various departments like production department, purchase department, marketing department, and then comes employee related correspondence, that is correspondence or communication which is done amongst employee. And these all correspondence can be in the form of notice, circular, memo and many other. Now let's see why there is a need of interdepartmental correspondence. ये interdepartmental correspondence की क्या ज़रूरत है कंपनी में? So first point, verbal information, that is suggestion, may be forgotten but can be retained in the form of a letter. अब आप सबको पता है कि वर्बल इन्फॉर्मेशन क्यों भूल जाते हैं लोग, क्योंकि वो ओरल होती है. इट कैन बी फॉरगॉटन एनी टाइम. बट अगर वो हमारे पास लिखित होती है, रिटन इन्फॉर्मेशन होती है, देन इट रिमेन्स एज अ प्रूफ फॉर एन एम्प्लॉई एंड एन एम्प्लॉयर कि ये इन्फॉर्मेशन या फिर ये मैसेज पास हुआ था. Now second point, information and ideas which are communicated between departments and the head office can be documented and served as evidence. Again the same point, evidence, that is the proof. तो जो भी communication हुआ है departments के बीच में या फिर head office के बीच में, that can be served as an evidence, as an proof. वो file में हम उसका record maintain कर सकते हैं. Third point, undesirable information or any information where there is a hesitation in communicating face to face can be imparted freely through correspondence. अब इसका मीनिंग क्या है कि कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ आमने सामने फेस टू फेस बात नहीं कर सकते, दे फील हेजिटेट, तो दे कैन बी imparted freely with the help of correspondence, that is written communication. Fourth point, employee becomes conscious about one's duty if the work is assigned in a written form. अब एम्प्लॉई के पास रिटर्न फॉर्म में सारा वर्क पड़ा है, तो क्या हो सकता है, वो एम्प्लॉई वो अपने वर्क के बारे में कॉन्शियस होगा, बार बार वो रीड करके उसको याद रहेगा कि नहीं, this work has to be done by me up till so and so time. So he remains conscious about his duty. Now fifth point, information can be filed and may be useful in future. अब इसमें क्या है कि record maintain हो सकता है, जैसे हमने देखा ऊपर के point में, that whatever information has been passed or whatever message has been passed, that can be filed up and that can be used in the future. 5 साल के पहले का कुछ record है तो वो written information में देख सकते हैं, बट अगर वो oral message पास हुआ होता है तो वो उसका कुछ proof नहीं रहेगा और information file up भी नहीं होगी. Sixth point, it is a less expensive and more effective medium. अब यहाँ पे खर्चा भी बहुत कम है और एकदम effective medium भी है because everyone can read it properly. Now you will see forms of the communication which is done amongst various departments and employee. First is notice. अब हम देखते हैं notice का meaning क्या है. Now notice, here we know that when a message is passed in written form from one person to another, that can be notice. अब यहाँ पे notice क्या है कि ये individual को भी पास हो सकता है मैसेज और ग्रुप में भी मैसेज पास हो सकता है. For example, an employer of a company passes a message to the employee. उनको बोलना है कि कल छुट्टी है ऑफिस में, तो वो कैसे पास होगी, नोटिस के फॉर्म में, that so and so day is being holiday in our office. तो इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल को भी मैसेज पास हो सकता है और ग्रुप में भी मैसेज पास होता है. अब यहाँ पे कोई एक पर्सन को ही मैसेज पास करना है, नॉट द होल ग्रुप. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉन्ट्स टू कन्वे द मैसेज टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंटल हेड that he has to produce so and so goods up till so and so time.
तो वो प्रोडक्शन मैनेजर को ही डायरेक्ट नोटिस जाएगी, नॉट द होल ग्रुप. So like this, notice can be conveyed to an individual also and a group also. अब उसका डिटेल में मीनिंग देखते हैं. A letter that is written to communicate to let the employees of the office know and implement the changes regarding the legal or constitutional matters or structural changes in the institutional issues of a business firm or organization is known as notice. अब यहाँ पे क्या है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जब एम्प्लॉयज़ को पास होती है रिटर्न फॉर्म में, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स है, कोई लीगल मैटर्स है, पॉलिटिकल मैटर्स है, स्ट्रक्चरल चेंजेस हमारी पॉलिसी में या कोई स्ट्रक्चर में चेंजेस आया है, तो पूरी इंस्टीट्यूशन को इन्फॉर्म करना होता है, तो दैट कैन बी पास्ड विद द हेल्प ऑफ नोटिस. नाउ यू विल सी हियर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नोटिस कि नोटिस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है. Now the first one, to draw the attention of employees when policy matters are not being followed strictly. अब यहाँ पे क्या है कि employees are being informed by the employers that so and so policy is there and we have to implement this policy. बट समटाइम्स ऐसा होता है कि एम्प्लॉयज़ वो पूरे ध्यान से काम नहीं करते हैं. सो एम्प्लॉयर्स हैव टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द एम्प्लॉयज़ दैट दिस इंफॉर्मेशन हैज़ बीन पास्ड बट वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हुई है. सो नोटिस के मदद से वो इंफॉर्मेशन पास हो सकती है पूरे ग्रुप को. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, that to inform the employees the changes made according to circumstances. अब circumstances सिचुएशन के हिसाब से कुछ चेंजेस होता है तो वो इन्फॉर्म कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ को कि ये चेंजेस रिफॉर्म्स हुआ है हमारे कंपनी में और उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना है. थर्ड पॉइंट, to inform the employees to perform duty according to a set order or specific method. Now the employees sometimes are doing mistake, वो प्रॉपर ऑर्डर से या प्रॉपर मेथड से फॉलो नहीं करते हैं. सो एम्प्लॉयर्स हैव टू पास द मैसेज, दे कैन इन्फॉर्म द एम्प्लॉयज़ दैट ड्यूटी शुड बी परफॉर्म विद सो एंड सो ऑर्डर एंड सो मेथड. नेक्स्ट पॉइंट, टू असाइन अ पर्टिकुलर वर्क टू अ पर्टिकुलर पर्सन and the time limit and the location to complete the work. अब एक पर्सन को एक प्रॉपर वर्क असाइन करना है और प्रॉपर टाइम लिमिट तक और एक लोकेशन में ये काम कंप्लीट करना है. दैट कैन बी पास विद द हेल्प ऑफ मैसेज इन द फॉर्म ऑफ नोटिस. लास्ट पॉइंट नंबर 5, to inform who has to submit the progress report and to whom to be submitted to the particular person. अब यहाँ पे क्या है कि कोई भी प्रोग्रेस रिपोर्ट, फॉर एग्जांपल हेड, डिपार्टमेंटल हेड को बोला है कि अपने डिपार्टमेंट का एक प्रोग्रेस रिपोर्ट रेडी करें, तो वो कैसे हो सकता है प्रोग्रेस रिपोर्ट रेडी? इन द फॉर्म ऑफ नोटिस द एम्प्लॉयर्स विल इन्फॉर्म द डिपार्टमेंटल हेड कि आपके डिपार्टमेंट का प्रोग्रेस रिपोर्ट रेडी करो. देन इट हैज़ टू बी सबमिटेड टू द हेड ऑफ द कंपनी, टू द डायरेक्टर और टू द मैनेजर. तो दिस कैन बी अ वेरी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ नोटिस. तो नोटिस का काम कंप्लीट हो गया, हमने नोटिस स्टडी कर लिया. नाउ यू विल स्टडी सर्कुलर कि इसका मीनिंग क्या है. अ लेटर रिटर्न ऑन अ रेगुलर बेसिस टू अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ with the view to inform them about the code of conduct decided by the management of the business firm or organization is called a circular letter. Circular letter has practical and administrative attitude. अब सर्कुलर क्या होता है कि इट हैज़ टू बी असाइन टू द एंटायर ग्रुप, इट कैन नॉट बी असाइन टू अ सिंगल पर्सन. एक सिंगल पर्सन को ग्रुप को असाइन करना है तो नोटिस हो सकती है, पूरे ग्रुप को असाइन करना है तो सर्कुलर में हो सकता है. नोटिस कैन बी इंडिविजुअल और ग्रुप बोथ. सर्कुलर है, इट कैन बी ओनली असाइन टू दी होल ग्रुप. अब यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्म करना है या फिर पॉलिसी में कुछ चेंजेस हुआ है एंड इट हैज़ टू बी इन्फॉर्म टू द होल ग्रुप ऑन अ रेगुलर बेसिस, सो दैट कैन बी नोन एज सर्कुलर. नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ द सर्कुलर. अब इसका क्या काम हो सकता है? फर्स्ट, इट गाइड्स द एम्प्लॉयज़ रिगार्डिंग देयर स्कोप ऑफ वर्क. अब उनको क्या काम करना है, कैसे काम करना है, तो उसके लिए इंफॉर्मेशन पास हो सकती है एम्प्लॉयज़ को विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर. नेक्स्ट, इट ड्रॉज द अटेंशन ऑफ द एम्प्लॉयज़ फॉर इम्प्लीमेंटिंग डिसीजंस टेकन बाय द मैनेजमेंट.
Now some decisions are taken by the management and implementation has to be done by the employees. बट वो अटेंशन एम्प्लॉयज़ का ड्रॉ करने के लिए कि प्रॉपर वर्क कैसे होना चाहिए, तो दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ सर्क्यूलर. थर्ड उसका फंक्शन है, इट क्लैरिफाइज व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एम्प्लॉयज़. एम्प्लॉयज़ के पास से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है वो सब क्लैरिफाई सर्क्यूलर में हो सकता है. एंड द लास्ट वन, इट मेंटेन्स इक्वालिटी अमॉन्ग्स्ट एम्प्लॉयज़. अब एम्प्लॉयज़ में क्या कि ये पूरे ग्रुप को मैसेज पास होगा, नॉट टू अ सिंगल पर्सन. सो जो भी मैसेज पास होगा, वेदर इट इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट और अ नेगेटिव पॉइंट, it has to be assigned in the group only. So equality will be maintained amongst employees. Next is characteristics of a circular. अब सर्कुलर के क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. फर्स्ट, a circular is written addressing not a particular employee but the entire group of employees. अब यहाँ पे क्या है कि सर्कुलर we have already studied before that ये particular employee को नहीं जाता है सर्कुलर, it has to be assigned for the whole group. Next, matter mentioned in the circular is applicable to all members of the group equally. अब सभी को equally ये assign होगा और applicable भी equally ही होगा. Third, the format of a circular is like all other letters, yet sometimes inside address or complimentary clause are not written. अब सर्कुलर का फॉर्मेट क्या है कि it would be like letters only, जो आपने 11th स्टैंडर्ड में लेटर्स स्टडी किया है. फ्रॉम एड्रेस, दैट इज द रिसीवर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस, लेटर हेड, इनसाइड एड्रेस, सैल्यूटेशन, ये सभी जो फॉर्मेट है वही फॉर्मेट सर्कुलर में आएगी. बट समटाइम्स इनसाइड एड्रेस है, दैट इज़ द रिसीवर सेंडर्स एड्रेस. कॉम्प्लीमेंट्री क्लूज है, दैट इज़ योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली. तो ये सब सर्कुलर में नहीं है, तो अगर वो एम्प्लॉयर्स नहीं लिखना चाहता है तो वो नहीं लिखेगा. नेक्स्ट, डेट एंड टाइम आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अ सर्कुलर. येस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कौन सी डेट पे सर्कुलर पास हुआ है और कौन से टाइम पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लास्ट वन, it is more like an attention drawing tool for a particular group employees regarding implementation of policy decisions. अब ये यहाँ पे उसका कैरेक्टरिस्टिक मेन है कि अटेंशन ड्रॉ करता है पूरे ग्रुप और ऑफ एम्प्लॉयज़ को कि ये पॉलिसी डिसीजंस इम्प्लीमेंट होना चाहिए बट ये हुआ नहीं है. वॉट एवर पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स रिगार्डिंग पॉलिसी डिसीजंस और एनी डिसीजंस आर टू बी गिवन, तो वो सर्कुलर के द्वारा इश्यू हो सकता है. और उसका मेन बेनिफिट ये है कि इट हैज़ टू बी पास टू द होल ग्रुप, इसलिए कोई भी एक सिंगल पर्सन को ये नहीं जाता है. नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन नोटिस एंड सर्कुलर. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर 2 मार्क्स क्वेश्चन कि नोटिस एंड सर्कुलर में क्या डिफरेंसेस है. फर्स्ट, नोटिस इज एड्रेस टू आइदर एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप, और सर्कुलर क्या है, वो पूरे एंटायर ग्रुप को एड्रेस करती है. नेक्स्ट, थ्रू नोटिस लीगल व्यू पॉइंट इज क्लैरिफाइड. अब लीगल इन्फॉर्मेशन है वो नोटिस से पास हो सकती है, और सर्कुलर में क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट्स को ज़्यादा क्लैरिफाई हो सकता है जो रेगुलर डे टू डे बेसिस पे जाती है. थर्ड वन, notice is a two-way communication, that is employees can give notice to management and management back to employees. और circular है वो one-way communication है. It is to be sent to the subordinate employees from the management. Management ही circular pass कर सकते हैं employees को. Now last point, circular can be issued on matters for which a notice is served. अब कोई भी नोटिस सर्व हुई है तो नोटिस के बारे में कुछ भी आगे ज़्यादा इन्फॉर्म करना है तो वो सर्कुलर के फॉर्म में कर सकते हैं. आफ्टर नोटिस सर्कुलर कैन बी इश्यूड, बट नोटिस कैन नॉट बी सर्व्ड फॉर दैट मैटर फॉर विच सर्कुलर इज इश्यूड. अब सर्कुलर कोई काम की वजह से इश्यू हुआ है तो उसके बाद नोटिस नहीं सर्व हो सकती है. नोटिस के बाद सर्कुलर आ सकता है बट सर्कुलर के बाद नोटिस नहीं आ सकती है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. स्टे होम, स्टे सेफ.